past tense, present tense, and future tense. Okay, again these three are categorized into more four parts. Right? What are the four parts? First of all, that is indefinite, or we can say simple. Right? Second is continuous, or you can say incomplete, or you can say going on. Third is perfect. Perfect, that means complete. I'll explain, right? Don't worry. Now, the last one is perfect continuous. Starting time is mentioned. Now, first we have to know this. What is this? Indefinite, simple. Why it is indefinite? Actually, at the time of speaking, when we speak simple sentence, simple that indefinite tense or sentences, that time the starting time and ending time, that is not mentioned here, and that's why it is known as what? Indefinite. And simple, why it is simple? Because these sentences comprises all the simple sentence. That means your habits, schedule, and then daily routine. These all sentences comes under this simple sentence. Now, simple tense. Now it is continuous. Continuous means at the time of speaking, the work is going on. Going on is written here, and that's why it is also known as incomplete. Right? Incomplete work. Why? Because when you are speaking, that time you are doing that, but you have not finished that. Third one, perfect. Perfect, and it is also known as complete. Why it is complete? Because at the time of speaking, you have finished your work. Now, perfect continuous. Perfect continuous, इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो क्या है कि the starting time, the work, when the work is started, right? When the time of the work is given in these sentences. Okay. एक और बार देखते हैं. इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस होते हैं. मैं एक सेंटेंस बता रहा हूँ जो कि प्रेजेंट में होगा ऑब्वियसली, राइट? आई गो टू स्कूल, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट? आई टेक हेल्दी फूड, लाइक दैट. नाउ कंटिन्यूअस, आई एम गोइंग टू स्कूल बट आई हैव नॉट रीच्ड द स्कूल, राइट? आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम ईटिंग फूड, राइट? आई एम कंप्लीटिंग माई होमवर्क बट स्टिल नॉट कंप्लीटेड. तो अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ. मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, बट अभी तक ख़त्म नहीं किया है. परफेक्ट में क्या होता है? आई हैव फिनिश्ड माई मील, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क. मैंने खाना खा लिया है, मैं अपना खाना खा चुका हूँ, राइट? मैंने होमवर्क कर लिया है या मैंने होमवर्क कर चुका हूँ, राइट? ये आता है आपके इसमें. ना परफेक्ट कंटिन्यूस. परफेक्ट कंटिन्यूस एक ऐसा सेंटेंस है जो कभी कभी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करता है, बट डोंट बी कंफ्यूज. आपको सेंटेंस पहचानना है तो बेटर तरीका ये है कि सेंटेंस में किसी भी काम के शुरू होने का समय वहाँ पर मेंशन होगा. शुरू होने का समय मीन्स मैं 2 घंटे से होमवर्क कर रहा हूँ. मैं होमवर्क कर रहा हूँ यानी कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है? कंटिन्यूस होता है. बट अगर उसमें टाइम मेंशनड है, मैं 2 घंटे से होमवर्क कर रहा हूँ, मैं सुबह से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो ये जो सेंटेंस होते हैं वो किस में आते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में. सो हर टेंस में आपके ये चारों सेक्शंस होंगे. पास्ट के साथ इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर
indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. So first of all, we are starting with present tense and we are making it the basic tense to start with. When we talk about present tense, and not only present, we are starting with what? Present indefinite tense. Present indefinite tense, or we can say present simple, right? Now Hindi is very important because to learn any language, any other language, we must have a basic language which we know better than that language. That means if we do not know English, हम इंग्लिश अच्छे से नहीं जानते हैं, तो हमारी हिंदी अच्छी होना ज़रूरी है, वही, क्योंकि हिंदी के बेसिस पर ही आप इंग्लिश को सीखेंगे। तो आज हम उस हिंदी को बेसिक बना रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसकी एक पहचान होती है। पहचान मीन्स आप हिंदी सेंटेंस को देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो एक पहचान है, वो पहचान जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, आदि। और एक और होता है, एक और कैसे होता है, हो, हूँ, है। अभी दो अलग अलग क्यों हुए हैं, राइट? ये दो अलग अलग क्यों हुए हैं वो अभी आपको मैं क्लियर करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम दो पार्ट में लर्न करेंगे ताकि आपको पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आए, राइट? अब लर्न करेंगे कैसे? इसके दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक होता है विथ मेन वर्ब और एक होता है विदाउट मेन वर्ब। ये सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये होते हैं मुख्य क्रिया के साथ और ये होते हैं सहायक क्रिया के साथ। मुख्य क्रिया कौन सा होता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब मीन्स खाना, पीना, जाना, सोना, राइट? ईट, प्ले, गो, सिट, स्टैंड, है ना? ये सब होते हैं मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया मैंने बताया था आपको, वर्ब जब बता रहा था, क्या? एम, इज, आर, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या होते हैं? सहायक क्रिया होते हैं। और ये क्या होते हैं? मुख्य क्रिया के होते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे किससे? विथ मेन वर्ब। विथ मेन वर्ब की जब बात करेंगे तो विथ मेन वर्ब में जो पहचान होती है वो ये होती है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, आदि। अब ता हूँ, ती ही मतलब ये है क्या? ऐसा लगता है जैसे हम कथक कर रहे हैं। नहीं, कथक नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? ता है, ती है मीन्स मैं खाना खाता हूँ, वे बाजार जाते हैं, सीता माला बनाती है, लाइक दैट। ये सब जो है उसी के अंत वाले यानी कि लास्ट के जो वर्ड्स है जिससे हम पहचानते हैं कि ये इंडेफिनिट है कि कुछ और है। अंडरस्टूड? सो इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी बॉडी का एक स्केलेटन होता है। स्केलेटन मीन्स जिसके ऊपर ये हमारा जो शरीर है, शरीर के अंदर का जो स्केलेटन है, उस स्केलेटन के ऊपर ही ये मांस वगैरह सब लगा हुआ है। एंड दैट्स वाई वी गॉट अ शेप। एक अच्छा शेप जो है उसी स्केलेटन की वजह से हमको मिला है, राइट? वी कैन स्टैंड, वी कैन वॉक, वी कैन
do many things due to that skeleton only, right? Not due to these muscles and all this, right? Due to that skeleton the main thing. So in any tense, any sentence in English आपका skeleton होता है. वो skeleton क्या होता है? एक रूल वो है subject plus verb plus object. ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये स्केलेटन है किसका? पूरे टेंस का, पूरे सेंटेंसेस का ये स्केलेटन है. यानी कि सीक्वेंस ऐसा ही होगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ आपको मैं एक सिंपल सा एक टेबल बता रहा हूँ. वो टेबल के बेसिस पर आप इस टेंस को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे. उस टेबल को हम कैटेगराइज या उसको किस तरह से बनाते हैं वो बता रहा हूँ आपको. सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? फर्स्ट राइट. अब ये जो फर्स्ट लिखा है ये है क्या असल में? ये क्या है? पर्सन. नाउ व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? दीज आर पर्सन्स. दैट मीन्स इस दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी जीव जंतु है, जितने भी जिन चीज़ों को भी हम देख सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, राइट, वो सारी चीज़ों को जो है कैटेगराइज किया है 3 पर्सन्स में, राइट. 3 पर्सन्स कौन सा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. इन 3 पर्सन्स में कैटेगराइज किया गया. और ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? मैं. दैट मीन्स आई. और आई का ही प्लूरल क्या होता है? वी. अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, और उसका प्लूरल क्या होगा? वी. तो मैंने यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल देके रखा है. तो इसका फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, और प्लूरल क्या है इसका? वी. यानी सब्जेक्ट्स है. हम इनको क्या कहते हैं? और कोई बताएंगे? इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोनाउंस. एंड व्हाट इज दैट? द वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज नोन एज प्रोनाउन. तो ये क्या है? प्रोनाउंस है यहाँ पर, राइट. सेकंड पर्सन. अब मैं तो हो गया फर्स्ट, और सेकंड पर्सन कौन? जिनसे मैं बात कर रहा हूं, यू, राइट. तो सेकंड पर्सन कौन है? यू. और यू का ही प्लूरल जो है हिंदी में तुम लोग होता है, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा? यू ही होगा ना. अब हम बात करते हैं इसकी कि आई और यू, मैं और तुम, मैं और तुम के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, वो सब क्या होंगे? थर्ड पर्सन्स. अंडरस्टूड? मैं और तुम के अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब क्या होंगे? थर्ड पर्सन्स होगी. तो वो मैं और तुम के अलावा कौन से थर्ड पर्सन्स होते हैं? वो कौन से होते हैं? ही, शी, इट, एनी नेम. ये जो एनी नेम है, डोंट बी मिसगाइडेड. एनी नेम जो है पर्सन का नाम भी हो सकता है, प्लेस का नाम भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का नाम भी हो सकता है. माइंड इट. पर्सन का नाम भी हो सकता है, प्लेस का नाम भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट का नाम भी हो सकता है. जैसे मोहन इज अ गुड बॉय, तो मोहन, राइट. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली. दिस बॉल इज रेड इन कलर, बॉल. इसका मतलब है एनी नेम सभी नेम को लेता है, सारे नेम्स को, जितने भी नेम्स है वो सब, राइट. मोहन, सोहन, बॉल, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, ये सब. अब इनका जो प्लूरल होता है फॉर्म, हम कहते हैं वह. ये भी वह होता है, यही वह होता है. तो वह अगर है तो उसका प्लूरल क्या होगा? वे. और वे क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? दे. सो दिस इज द चार्ट वेयर यू कैन सी दैट हमारी जो पूरी कैटेगरी है, जो सब्जेक्ट की कैटेगरी है, वो
तीन पार्ट में डिवाइड किया, तीन कैटेगरी में किया गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ओके, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैंने स्केलेटन बताया था, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट. एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्केलेटन तो है, लेकिन साथ में एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, जो रूल है पर्टिकुलरली किसके लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए. वो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट. ये SES कहाँ से आया, खैर वो SES कहाँ आता है, कहाँ यूज होता है, अभी आपको पता लग जाएगा, देखते हैं अपन, राइट. आई प्ले हॉकी, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, समझ में आया. वी प्ले हॉकी. नाउ यू प्ले हॉकी, यू प्ले हॉकी, दे प्ले हॉकी. आपने देखा होगा कि इसमें जो वर्ब है इसमें कोई चेंज नहीं है, सिंपल रूल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. लेकिन ये SES कहाँ से आया, राइट. SES कहाँ जाएगा, वो है आपके थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके लिए होता है. तो यहां पर क्या आएगा, प्लेज हॉकी. जैसे ही प्लेज हॉकी, शी प्लेज हॉकी, इट प्लेज हॉकी. नहीं, इट नहीं प्ले करता है, करता है वैसे, कभी कभी डॉग्स करते हैं, कभी हॉर्स भी करते हैं, तो हो सकता है, राइट. इट प्लेज हॉकी. एनी नेम, मोहन प्लेज हॉकी, सोहन प्लेज हॉकी. सो इन दिस वे आपका रूल जो है वो क्या है, SES लगने का रूल क्या है, वो ये है कि whenever, जब भी आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष एक वचन होगा, इसको अन्य पुरुष कहा जाता है. ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष. अन्य पुरुष एक वचन होगा तो उसके साथ वर्ब में क्या आएगा, SES आएगा. अंडरस्टूड, राइट. अब मैं आपको एक और चार्ट बताने वाला हूँ, वो चार्ट बताने के बाद आपको मैं इसके जो सेंटेंसेस है वो बताऊंगा, राइट. ये दूसरा चार्ट किस चीज़ लिए है, दूसरा चार्ट इसलिए है कि जब भी हम एफर्मेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, ठीक है. अब इस सेंटेंस में एफर्मेटिव क्या है, असर्टिव क्या है, राइट. ये इसके लिए मैं ये चार्ट बताने के बाद बताऊंगा आपको एफर्मेटिव असर्टिव है क्या. लेकिन पहले ये समझ लेते हैं हम, इसमें नेगेटिव जब आता है, जब हम नेगेटिव बात करते हैं तो नेगेटिव में क्या होने वाला है, हमने क्या लिखा था, आई प्ले हॉकी. तो जैसे नेगेटिव होता है तो वहाँ पर क्या आता है, आई डू नॉट प्ले हॉकी, वी डू नॉट प्ले हॉकी, यू डू नॉट प्ले हॉकी, वी do not play hockey. He, she, it, any name. पहले इसको देखते हैं, they do not play hockey.
जब सिंपल सेंटेंस में हमने ऐसे मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया था, इसके साथ वर्ब के साथ एस सी एस लगाया था या एस लगाया था, तो इसका मतलब है कि जब हम इसको नेगेटिव करेंगे तब भी कुछ चेंज होना है। अब वो चेंज क्या है, हर जगह क्या लगा है, डू, तो इसमें क्या लगने वाला है, डज नॉट प्ले हॉकी। और एक और खास बात, जब यहाँ पर डू या डज लगता है, डू या डज का यूज़ होता है, तो ऑटोमेटिक आपके वर्ब में एस सी एस नहीं लगेगा। डू या डज लगता है तो एस सी एस नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा ना। एक और पोर्शन जो रह जाता है इसी के साथ, वो है इंटरोगेटिव। अब हम नेगेटिव कर रहे थे नॉट का, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, डू आई प्ले हॉकी, डू वी प्ले हॉकी। I'm सॉरी, यहाँ पर आपका यू आना है, डू वी प्ले हॉकी, डू यू प्ले हॉकी, डू दे प्ले हॉकी। Do you play hockey? Now, does he play hockey? देखा आपने, ये है नेगेटिव और ये है इंटरोगेटिव, राइट। इसके बाद बताऊंगा मैं आपको सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं और कैसे होते हैं और कैसे चेंज करते हैं, मतलब किस तरह से हम चेंज करते हैं इसको, राइट। ये बीच बीच में इसलिए बता रहा हूँ कि जो पॉइंट आता जा रहा है मैं उसको मैं एक्सप्लेन करके फिर आगे दूसरे काम के लिए जाएंगे या दूसरे पार्ट के लिए, ताकि आपको वो इजीली समझ में आता रहे। ये समझ में आया आपको अच्छी तरह से, राइट। ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट।